series on Biological Science 2022 organized by Government PG College Bajpur and SS College Sarjapur. I am honored to introduce our esteemed speaker of the day, Dr. Shankar Mandal, Assistant Professor at Allison Government PG College, Pithoragarh, Uttarakhand. Dr. Mandal is PhD from All India Institute of Medical Science, New Delhi, and has worked on antimicrobial and immunomodulatory effects of tulsi. Dr. Mandal has 9 years of teaching experience and has won many accolades in the field of research. He has received many reputed awards and fellowships like National Talent Fellowship and UP India Science Bridge Fellowship from University of Nottingham. Dr. Mandal's research work has been published in renowned journals of international repute like International Society for Horticulture Sciences, Belgium, Royal Pharmaceutical Society of Great Britain, Publication UK. His most famous research publication is on reducing cardiovascular disease risk factors with double-blinded randomized control trials. Now I request Dr. Mandal to deliver the lecture on in silico drug designing. Sir, over to you, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much for kind introduction. I would like to thank the organizers for this online lecture series. This is very really wonderful opportunity for us. And thank you, Dr. Atul Uproti, Dr. Adarsh, and Dr. Dalakoti, and all the organizing committee members for giving me the opportunity to address this young and energetic team of yours. So I will be presenting my presentation. That's a very recent development in drug development, that is in silico drug designing. So ma'am, should I keep my language as English or should I use mixed one? Because audience, I guess, from the diverse group. As you wish, sir. Okay, thank you, ma'am. So let me share my slide, then I'll start. So it will be better if you keep your language mixed. Okay, Dr. Sir. Thank you, sir. Sir. Doctor, is it visible in complete screen? Yes, sir. Yes, sir, visible. And is it also moving? Yes. Okay, thank you. So, good morning, one and everyone. So, this topic is in silico drug discovery. As the name is indicating, in silico, basically we are concerning with the computer. So computer is also called, anything done in computer is also called in silico. So drug discovery is a very recent phenomenon coming into boom. So today's topic is in silico drug discovery, and this is a very good thing for students like us studying in India, जहाँ पे हमारे पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज है, रिसर्च करने के लिए हमारे पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज है. तो इन सिलिको ड्रग डिजाइनिंग वी कैन डू एट आवर होम. कहीं पे हम बैठने की जगह हो, एक कुर्सी हो और एक लैपटॉप हो और इंटरनेट कनेक्शन हो, सो वी कैन डू, एंड पीपल आर डूइंग इट वेरी वेल. सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ माय प्रेजेंटेशन. मैं क्या पढ़ाने बोलने वाला हूँ, और इसमें टोटल जो टाइम आपको हमको चाहिए होगा, दैट आई गेस कि 30 मिनट्स मैक्सिमम चाहिए होगा, जिसमें सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा कि इन सिलिको ड्रग डिजाइनिंग होता क्या है. फिर मैं आपको ड्रग डिस्कवरी का प्रोसेस बताऊंगा कि हाउ द ट्रेडिशनल वे ऑफ ड्रग डिस्कवरी इज देयर, and then what computer based drug discovery may be. Then the scope of drug discovery and designing, क्या scope है.
फिर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ वन कैन प्रेडिक्ट ए पोटेंशियल कैंडिडेट ड्रग और व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट वी कैन डू इन दिस डिस्कवरी. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. आप में से कोई ना कोई कभी ना कभी कोई बीमार तो पड़ा ही होगा, और अगर आप देखेंगे तो फीवर इज अ वेरी कॉमन फेनोमेनन. तो आपको जब भी व्हेनेवर यू आर सिक, व्हाट who is the doctor prescribes a medicine. So ये medicine you can see it's very attractive in color, रंग बिरंगी होता है और लोग हम बड़े मजे से इसको खरीद के खा भी लेते हैं. But do you know what is the story of developing all this drug? So जो अब ये ड्रग मेडिसिन आप बाजार से खरीदते हैं, इसको ड्रग होने से पहले ये केमिकल होता है. So every chemical is potentially a toxic substance. जो टॉक्सिटी है वो पार्सेलियस ने बोला था कि जो भी हम खाते पीते हैं, जो भी केमिकली नेचर है, वो सब टॉक्सिक हो सकता है. लेकिन जो चीज हमारे लिए बेनिफिशियल है और कम हार्मफुल है, उसको हम ड्रग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, मेडिसिन की तरह कर सकते हैं. तो मेडिसिन या ड्रग किसको कहते हैं? सो एक नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है, उन्होंने डिफाइन किया व्हाट इज ड्रग और मेडिसिन. एनी सब्सटेंस अदर देन फूड दैट इज यूज्ड टू प्रिवेंट, diagnosis, treatment or relieve the symptoms of a disease or abnormal condition is called as drug. That means जैसे आप बीमार पड़ते हैं तो आप कोई दवाई लेते हैं, वो दवाई को आपको कंडीशन से जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं, कम करते हैं या एकदम खत्म करते हैं, तो उनको हम कह सकते हैं कि वो ड्रग है. सो जो मोस्ट मॉडर्न ड्रग्स है, वो मॉडर्न ड्रग्स आते कहां से हैं? उससे पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जानते हैं कि जो हमारे एंशिएंट टाइम है वो ड्रग कैसे होते थे. तो मैं यहाँ पे दो पिक्चर आपको दिखाना चाहूंगा. एक हमारे इंडिया का है और एक ये इजिप्ट का है. सो व्हाट वी डू सी हियर कि इंडिया में हमारे एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्रॉपर्टीज है, मेडिसिन सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड इज आयुर्वेदा. एंड आयुर्वेदा इज बीइंग प्रैक्टिस एंड इट इज द वन ऑफ द लिविंग एग्जाम्पल्स की जो हमारे लिविंग कल्चर्स है, उस कल्चर्स में अभी भी सिंस द इंसेप्शन ऑफ दिस हिस्ट्री रिकॉर्डिंग, आयुर्वेदा इज स्टिल बीइंग प्रैक्टिस इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री. और अबाउट 80% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन सीक्स होम रेमेडी और आयुर्वेदिक रेमेडिएशन फॉर देयर प्रॉब्लम्स. और यहाँ इजिप्ट में भी लोगों ने ड्रग मेडिसिन यूज करते थे, एंड दैट ऑल ड्राइव्ड फ्रॉम द प्लांट्स. सो ये प्लांट वेस्ट होता था या फिर कोई मिनरल वेस्ट मेडिसिन होते थे. नाउ जो ड्रग डिस्कवरी मॉडर्न टाइम में है वो कैसे करके होता है? सो मॉडर्न जो ड्रग्स है दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम द प्लांट्स. सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा. जो फर्स्ट ड्रग है वो मर्क कंपनी ने बनाई और वो ड्रग थी मॉर्फिन, और ये बनाया 1826 में. दिस मॉर्फिन इज बीइंग ड्राइव्ड फ्रॉम ओपियम प्लांट, ओपियोड जो होता है, और ये पेन रिलीवर की तरह काम करते हैं. और दूसरा जो सिंथेटिक ड्रग था, सेमी सिंथेटिक ड्रग, जिसको आप अब आज भी डिस्प्रिन के नाम से जानते हो, जो एस्प्रिन होता है, ये एस्प्रिन बेयर ने बनाया 1899 में. और आज की डेट की अगर बात करें 2022 में, तो लास्ट 30 इयर्स में जितने भी ड्रग डेवलप हुए उनका अबाउट 50% ड्रग जो है प्लांट बेस्ड मॉलिक्यूल से उनको ड्रग के रूप में कन्वर्ट किया है. सो वी शुड नो हाउ दिस ड्रग इज गेटिंग डिस्कवर्ड, और केमिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो कैसे करके मेडिसिन में कन्वर्ट होते हैं. सो ट्रेडिशनल वे होता है जो ड्रग डिस्कवरी का, उसको आप इस कार्टून के थ्रू यू कैन अंडरस्टैंड कि देयर इज वेरी ए लार्ज लीड मॉलिक्यूल. यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे लीड मॉलिक्यूल्स होते हैं. उनको हम क्या करते हैं, एक एक करके हम उसको प्री क्लिनिकल स्टडी करते हैं. सो ये प्री क्लिनिकल स्टडी में क्या करते हैं, वी डू गिव दीज केमिकल सब्सटेंसेस टू एनिमल. अगर हम इसको एनिमल्स को देंगे तो उन एनिमल्स को उनको खिलाएंगे और देखेंगे कि उनके ऊपर ये क्या असर हो रहा है. एनिमल के ऊपर अगर अच्छा असर हो रहा है, उसके टॉक्सिसिटी कम है, तो हम दूसरे स्टेज में जाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी टॉक्सिक तो नहीं है, क्योंकि जो भी मेडिसिन होता है वो हमारे
बॉडी में जाके कुछ इम्पैक्ट करते हैं, जिसको हमने दो टर्मिनोलॉजी कहते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। इसमें क्या होता है, जो जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारा डाइजेशन होता है, तो बॉडी फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करती है, डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट करता है, ये स्टडी हम फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स के ऊपर करते हैं। सो प्री क्लिनिकल स्टडी में अगर टॉक्सिक नहीं है सब्सटेंसेस तो उसको हम क्लिनिकल स्टेज में ले जाते हैं, और क्लिनिकल स्टेज जो इसको कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल। इसके अलग अलग फेजेस होते हैं, और जब क्लिनिकल ट्रायल में अप्रूव होता है तो एक हर गवर्नमेंट की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, जैसे अमेरिका में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी, तो वो अप्रूव करती है कि ये ड्रग लाइक सब्सटेंसेस है या नहीं है। इफ इट इज हैविंग अ ड्रग लाइक सब्सटेंसेस तो उसको ड्रग के रूप में अप्रूव करते हैं। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि वी हैव स्टार्टेड विद द 10,000 कंपाउंड्स एंड वी डू कम ऑन टू ए सिंगल मॉलिक्यूल, जो हमको एक कंपाउंड है, इसको हमने ड्रग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको इस्तेमाल करने के लिए कैसे, जैसे मैंने आपको कहा कि प्री क्लिनिकल टेस्टिंग करते हैं, तो ये प्री क्लिनिकल टेस्टिंग है जिसमें हम एनिमल्स को, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट्स वेरी क्रूएल, एनिमल्स के ऊपर इंजेक्ट करते हैं, उनको डिफरेंट तरीके से उनके टेस्ट करते हैं। जैसे दिस फोटोग्राफ इज शोइंग दिस ए ड्रग बीइंग टेस्टेड फॉर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। दिस ड्रग इज बीइंग टेस्टेड फॉर मेंटल रिहेबिलिटेशन, जैसे कोई न्यूरोनल स्टिमुलेशन है तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन करके ब्रेन में एक ट्रांसमीटर लगा रहे हैं, और एक ट्रांसमीटर से जो सिग्नल आ रहा है दैट इज बीइंग रिकॉर्डेड बाय द कंप्यूटर। ये सब करने के बाद ये प्री क्लिनिकल स्टडीज है। फिर टॉक्सिसिटी स्टडी करते हैं, उसके बाद उसमें क्लिनिकल ट्रायल फेजेस में जाते हैं। इफ यू सी दिस क्लिनिकल ट्रायल फेज, इसको ब्रॉडली हम 3 डिफरेंट फेजेस में बांट सकते हैं। फेज वन में क्या करते हैं, हम सिलेक्टेड ग्रुप में स्मॉल नंबर ऑफ ह्यूमंस वॉलंटियर्स जो होते हैं उनको हम देते हैं, जैसे सपोज 30, 40 या 50 लोगों को ये जो भी हमारे ड्रग है, टेस्ट ड्रग, उनको देते हैं। अगर इनके ऊपर कुछ एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ और बेनिफिशियल इफेक्ट हुआ तो हम फेज 2 में जाते हैं। फेज 2 में थोड़ा सा उनका नंबर ऑफ पर्संस को हम ज्यादा बढ़ा देते हैं, सो दैट ये जान पाए, क्योंकि वी आर जेनेटिकली हैविंग ए डिफरेंट जेनेटिक मेकअप। सो एक ड्रग मॉलिक्यूल केमिकल एक जने के एक तरह से इंपैक्ट कर सकता है, दूसरे को दूसरे तरीके से, तो हम जो फेज 2 में उसका ज्यादा नंबर पे करते हैं। फेज 3 इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए कम्युनिटी ट्रायल। इन कम्युनिटी ट्रायल वी ट्राई इट इन मेनी पीपल और ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे हमारे पास 5 ह्यूमन रेसेस है, जैसे आप इंडियन रेस है, अफ्रीकन रेस है, मंगोलॉइड रेस है, या कॉकेशियन है यूरोप में, तो अलग अलग रेस की अलग अलग एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो सकती है बॉडी की, जो कि उसको इम्पैक्ट कर सकता है ड्रग मॉलिक्यूल। सो फेज 3 ट्रायल हो सकता है, होने के बाद अगर वो ड्रग मॉलिक्यूल किसी के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं, टॉक्सिक नहीं है, तब जाके उसको एफडी अप्रूवल करते हैं। इसको एक टाइमलाइन के थ्रू हम जान सकते हैं, ये टाइमलाइन है। सो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हम शुरू करते हैं एक कैंडिडेट ड्रग मॉलिक्यूल ट्रेडिशनल वे में, 5 से 10,000 कैंडिडेट पोटेंशियल ड्रग को हम स्क्रीन करते हैं। स्क्रीन करने के बाद इसमें कुछ 10 या 20 मॉलिक्यूल मिलते हैं जिसको हमने कैंडिडेट ड्रग कहते हैं, उसकी हम प्री क्लिनिकल टेस्टिंग करते हैं, फिर उसके डिफरेंट क्लिनिकल फेजेस में उसको जाते हैं और मेडिसिन अप्रूव होता है, और अप्रूव होने के बाद वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज अप्रूव करती है और उसको पेशेंट के लिए अवेलेबल होता है। इफ यू सी द टाइमलाइन, ये करने के लिए करीब एवरेज 13 to 15 ईयर्स चाहिए, 13 से 15 साल चाहिए एक ड्रग मॉलिक्यूल को डेवलप करने के लिए। और इसमें करीब एक ड्रग को स्टडी जो खर्चा आता है इसमें टाइम के साथ साथ अबाउट $2 बिलियन इसमें खर्चा होता है। इसका मतलब आपने 15 साल लगाया और $2 बिलियन खर्च किए, और इसका जो सक्सेस रेट है, दैट सक्सेस रेट इज वेरी सरप्राइजिंग, इट्स ओनली 10% है। जो सक्सेस रेट है, जो फाइनल ड्रग मॉलिक्यूल के रूप में अप्रूवल मिलेगा, उसका सक्सेस रेट 10% है। इसका मतलब आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किया, 15 साल इन्वेस्ट किए, टाइम एनर्जी इन्वेस्ट किया, आपको 7%। नाउ इफ दिस कैन बी मॉडिफाइड समहाउ, सो इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि इतना टाइम कैसे लगता है। पैरासीटामोल एक एग्जांपल है इसका। तो पैरासीटामोल आपको पता है कि हम जब फीवर होता है तो हम यूजुअली पैरासीटामोल दुकान से जाते हैं और लेके आ जाते हैं,
लेकिन जो पैरासिटामोल का हिस्ट्री है इसको थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूंगा. फर्स्ट पैरासिटामोल वाज सिंथेसाइज्ड इन 1878 बाय मॉर्स. मॉर्स ने इसको 1875 में डिस्कवर किया और इसको 1893 में मेरिंग ने बोला कि इसमें कुछ एंटीपायरेटिक या एनाल्जेसिक इफेक्ट है. एंटीपायरेटिक उसको बोलते हैं जो उसको टेम्परेचर जो रिड्यूस करता है. एनाल्जेसिक का मतलब होता है जो पेन रिलीवर की तरह काम कर सकता है. बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक दूसरा मेडिसिन था जिसका नाम था फेनासिटिन. फेनासिटिन was used for this antipyretic as well as the analgesic. तो कोई ये पैरासिटामोल को अप्रूव नहीं करते थे. बट 1950s में वर्ल्ड वॉर 2 जब चल रहा था उन्हीं दिनों ये देखा गया है कि जो पैरासिटामोल है, पैरासिटामोल इज मोर सेफर देन दिस फेनासिटिन. तो 1950 से लेके अभी पैरासिटामोल हम एंटीपायरेटिक की तरह यूज करते हैं. तो यू कैन अंडरस्टैंड कितने साल लगे. पहले सिंथेसाइज इसको किया 1878 में और 1950s में करीब करीब 100 साल लग गए इसको वहां तक आने के लिए जब हम एक पॉपुलराइज कर पाए. सो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसको थोड़ा सा हम समझाते हैं आपको. ये काम करता है हमारे जैसे हमारे सेल है, सेल के चारों तरफ एक लिपिड बाइलेयर होता है, बाइलेयर. तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड इज फॉस्फोलाइपेज A2 और ये फॉस्फोलाइपेज A2 एक्ट करता है एराकिनोडोइक एसिड्स के ऊपर. एराकिनोडोइक एसिड्स इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्रोस्टासाइक्लिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स. और जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है इसको करने के लिए 3 तरह का एंजाइम्स है. ये एंजाइम्स है COX-1 यानी कि साइक्लोऑक्सीजिनेज 1, 2 एंड 3. और इसके कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे कि प्रोस्टासाइक्लिन PG1. प्रोस्टाग्लैंडिन्स के अलग अलग फॉर्म है D2, F2 एंड E2 एंड थ्रोम्बेक्सिन. ये फीवर इंक्रीज करने के लिए और पेन बढ़ाने के लिए काम आते हैं. तो जो हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल है, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि पैरासिटामोल. सो ये पैरासिटामोल क्या करता है, ये जो साइक्लोऑक्सीजिनेज है इसका प्रोडक्शन को स्टॉप कर देता है, एंजाइम्स को इसको ब्लॉक कर देता है. तो हमारा ये फर्दर पाथवे ब्लॉक हो जाता है और हमें रिलीफ मिल जाता है. दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स. अब आते हैं कि अगर इतना टाइम लगता है तो व्हाट कैन बी द अल्टरनेटिव, बिकॉज वी आर साइंस इज डेवलपिंग. सो डेवलपिंग साइंस में हमारे पास नया जो टेक्निक आया वो आया है इन सिलिको ड्रग डिजाइनिंग. सो इन सिलिको ड्रग डिस्कवरी में हम कुछ टाइम गैप को कम कर सकते हैं और ये ऑल्टरनेट और वेरी फास्ट है. कैसे? सिंपली मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में आपने नाम सुना ही होगा. उसके थ्रू हमको हर किसी का ह्यूमन के पूरे डीएनए की सीक्वेंस मिल गई. तो डीएनए का काम क्या है? अल्टीमेट रोल ऑफ द डीएनए इज टू मेक द प्रोटीन. और प्रोटीन का काम क्या है कि इट कैन एक्ट एज एन एंजाइम, रिसेप्टर और स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल. सो जो हमारे पास कंप्यूटर है वो कंप्यूटर कैन प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और हम कुछ मॉलिक्यूल है उसके डॉकिंग करके बता सकते कहाँ लगेगा. और ये कुछ मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल्स को लेके हम उसको डॉकिंग करा सकते हैं. आगे चल के मैं आपको बताता हूँ. सो इन सिलिको कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन में क्या हाउ वी हैव प्रोग्रेस्ड, बिकॉज ईयर 2000 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कंप्लीट. इसमें क्या हुआ, पूरा ह्यूमन का जो डीएनए उसके सीक्वेंस हमको पता चल गया. उसके साथ साथ हमको स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए एंड अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस भी पता चल गया. जब सीक्वेंस का पता चल गया तो हम गवर्नमेंट ऑफ फंडेड टू द साइंटिस्ट टू प्रोड्यूस द डेटाबेसेस. तो ये जो डेटाबेसेस है, ये डेटाबेसेस आर फ्रीली अवेलेबल, जिसमें हमने अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस पता कर सकते हैं, आरएनए का सीक्वेंस पता कर सकते हैं एंड डीएनए का सीक्वेंस पता कर सकते हैं. दूसरी चीज एक और अच्छी बात है कंप्यूटर के साथ कि ये मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल्स को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकता है. सो मैथमेटिकल जो एल्गोरिदम होते हैं, इफ वी पुट द मैथमेटिकल एल्गोरिदम, इट कैन प्रेडिक्ट ए स्ट्रक्चर और इट कैन प्रेडिक्ट ए मॉडल ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोटीन कि प्रोटीन कैसे करके फोल्ड होगा. सो इस प्रोटीन फोल्डिंग के बेसिस पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोई प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे होगा और उस स्ट्रक्चर में कोई बाइंडिंग जगह है या नहीं है. ये सिंपली आपको मैं बता सकता हूं कि इट्स एप्लीकेशन ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी और जो केमी इन्फॉर्मेटिक्स है वो.
इसमें क्या है, जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स का मतलब है हमारे पास जो भी डेटाबेसेस अवेलेबल है, उस स्ट्रक्चर बायोलॉजी में उस जो डेटाबेस है, सपोज हमारे पास अमीनो एसिड्स है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो उसका स्ट्रक्चर बायोलॉजी में करते हैं। केमिइन्फॉर्मेटिक्स में केमिकल की प्रॉपर्टीज क्या है उसको करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, एंड दैट अल्टीमेटली फॉर्म्स द बेसिस ऑफ दिस इन सिलिको ड्रग डिस्कवरी। और ये जितने भी ड्रग हैं, इस ड्रग को मैं बताने के लिए आपको बताऊं कि ये टारगेट में काम करते हैं। कैसे? जैसे अगर आप एक सेल को इमेजिन करेंगे तो सेल का एक आउटर मेम्ब्रेन है और इसके अंदर न्यूक्लियस है और इसके बीच में साइटोप्लाज्म में भी कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल है। तो जो ड्रग जो भी हम खाते हैं उस ड्रग का अलग अलग टारगेट होता है। वो टारगेट क्या हो सकता है? उसके सरफेस पे हो सकता है, उसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट मॉलिक्यूल हो सकता है, या न्यूक्लियस इटसेल्फ हो सकता है। सो ये जो ड्रग का टारगेट है वो 3 तरीके से हो सकता है। जो प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन हो सकता है, इसका मतलब कोई प्रोटीन को अगर ब्लॉक कर दे तो वो डिजीज नहीं होगी, या प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबोलाइट्स हैं, जब भी बॉडी कोई एंजाइमेटिक एक्शन करती है कोई सबस्ट्रेट के ऊपर तो उसके बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसको हमने मेटाबोलाइट्स कहते हैं। तो मेटाबोलाइट्स को अगर रोक पाए, जैसे आपने प्रोस्टाग्लैंडिन का एग्जांपल देखा कि कॉक्स एंजाइम्स काम करते हैं एराकिडोनिक एसिड्स पे और वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के डिफरेंट फॉर्म्स बनाते, तो वो मेटाबोलाइट्स हुए। और प्रोटीन और डीएनए का इंटरेक्शन जिसका हमने ट्रांसक्रिप्शनल नेटवर्क करते हैं, क्योंकि डीएनए का अल्टीमेटली काम क्या है? प्रोटीन बनाना, और उसके लिए ट्रांसक्रिप्शन होता है। सो जो स्टेप्स हैं इन सिलिको ड्रग डिस्कवरी के वो क्या क्या है? तो सबसे पहले जो स्टेप्स है उसका है आपका टारगेट सिलेक्शन, कि हमारा कौन सा टारगेट है जिसको ब्लॉक करना है या एक्टिवेट करना है। फिर लाइगेंड सिलेक्शन, लाइगेंड का मतलब है कौन सा मॉलिक्यूल जो उस टारगेट को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने के लिए कैपेबल है। दूसरा हम उसके प्रिडिक्शन स्टडी करते हैं जिसको हमने सिमुलेशन एंड प्रिडिक्शन स्टडी कह सकते हैं। इसके बाद हम टॉक्सिसिटी स्टडी करते हैं। अब टॉक्सिसिटी ट्रेडिशनली क्या करते हैं, हम एक लाइव एनिमल को खिलाते पिलाते हैं और देखते हैं कि उसके ऊपर टॉक्सिक इंपैक्ट हुआ या नहीं हुआ। बट मैथमेटिकल मॉडलिंग, कंप्यूटर एल्गोरिथम को इंक्लूड करके हम उसकी इन सिलिको टॉक्सिसिटी स्टडी भी कर सकते हैं। और अगर ये सब कुछ सक्सेसफुल रहा, अच्छा रिजल्ट हमको मिला, तो हम इसको इन विट्रो स्टडी करते हैं सेल कल्चर में या एनिमल मॉडल्स में। तो इससे हम जो टाइम बचा सकते हैं वो 5 to 8 ईयर्स का जो ट्रेडिशनल टाइम होता है ये सब करने के लिए, इतना चीज हम टाइम बचा सकते हैं 5 to 8 ईयर्स। सो अदरवाइज जो ड्रग हम 15 ईयर्स में करते हैं वो ड्रग को हम 5 ईयर्स या 7 ईयर्स में मार्केट में अवेलेबल करा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले करते क्या है, जो हमने टारगेट सिलेक्शन है। सो टारगेट सिलेक्शन करते हैं, जो हमारे पास गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट है उन्होंने अलग अलग डेटाबेसेस बना रखा है। जो प्रोटीन के लिए प्रोटीन डेटाबेसेस है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो टारगेट है वो टारगेट मिलेगा कहाँ पे हमको क्या पता। कोई डिजीज है, सपोज जैसे कोरोना अभी चल रहा है, तो कोरोना को ट्रीट करने के लिए टारगेट क्या होगा, तो सबसे पहले हमने उसके अवेलेबल लिटरेचर्स देखेंगे। सो अवेलेबल लिटरेचर देखने के लिए बहुत सारे ऑनलाइन डेटाबेसेस है। एक एग्जांपल है आपका ये पबमेड है, जिसमें जितने मेडिसिन रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ऑल दीज आर प्रेजेंट। बट देयर आर साइंस डायरेक्ट एज वेल, देयर आर इंजेंटा कनेक्ट, सिनाहेल, एग्रीकोला, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डेटाबेसेस। लेकिन 2-4 जो बहुत फेमस है आपका ये पबमेड है, हाईवायर है, साइंस डायरेक्ट है, इंजेंटा कनेक्ट है, नेचर है। सो यहां से हमको पता लगेगा कि हमारे लिटरेचर में क्या क्या इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। वंस वी फाइंड दैट इन लिटरेचर दीज टारगेट्स आर अवेलेबल, सो टारगेट का एक डेटाबेस है, वो डेटाबेस इज बीइंग प्रोड्यूस मेंटेन बाय प्रोटीन डेटा बैंक। ये एक यूरोपियन प्रोजेक्ट है और इसमें जितने भी प्रोटीन है जिसका अमीनो एसिड सीक्वेंस पता है उसका अमीनो एसिड का सीक्वेंस इज अवेलेबल। सो वन कैन फ्रीली एक्सेस दिस डेटा बैंक एंड रिट्राइव द स्ट्रक्चर। सो आपको मैं यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी दिख रहा है। वंस दिस डेटा इज structure is receptor is found or structure has been found, we retrieve it. So retrieve क्या करते हैं, इसमें जो स्ट्रक्चर होता है उसको रिट्राइव करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ह्यूमन साइटोक्रोम P450 का एग्जांपल।
सो इसको हमने एग्जाम रिट्राइव कर सकते हैं। इसको हर की एक यूनिक आईडी मिलती है, जैसे इसका यूनिक आईडी है 3RUK। अब आते जब इसको एक 3D स्ट्रक्चर मिल गया, तब इसको हमने कैसे करके प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल। वन सॉफ्टवेयर इज दैट पाइमोल, इट्स ऑल्सो फ्रीली अवेलेबल। इसमें हमने ये रिबन शेप उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हैं। नाउ वी ट्राई टू रिट्राइव द लाइगेंड। जैसे मैंने आपको कहा लाइगेंड मतलब जो पोटेंशियल ड्रग मॉलिक्यूल है, ये कुछ केमिकल भी हो सकता है, लीड मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या फाइटोकेमिकल प्लांट बेस्ड हो सकता है। यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख सकते हैं ल्यूप्यूल। और ये कहाँ मिलता है? ये सारा जो लाइगेंड लीड मॉलिक्यूल्स का है। एक है पबकेम, जैसे आपको पबमेड है, ऐसा पबकेम में भी केमिकल्स का स्ट्रक्चर फ्रीली अवेलेबल है, एनीवन कैन एक्सेस इट। वंस वी फाइंड दिस स्ट्रक्चर वी डू रिट्राइव इट और इसको प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद हम करते हैं टॉक्सिसिटी स्टडी। सो टॉक्सिसिटी स्टडी में व्हाट वी डू इज दैट एडमेट का मतलब होता है, पहले होता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन एंड टॉक्सिसिटी। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप खाना खाते हैं, सो खाना खाने के बाद व्हाट डज इट डू? खाना खाने के बाद आपकी बॉडी क्या करती है? उस खाने को डाइजेस्ट करती है। डाइजेस्ट करने के बाद उसको एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने के बाद उसके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है फूड को। जब फूड पहुंचता है तो उसका एक मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म होने के बाद उसका एक बाय प्रोडक्ट बनता है, जिसको हम टॉक्सिक मान सकते हैं। और टॉक्सिक सब्सटेंसेस बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है, या हमारे स्टूल के थ्रू बाहर निकलता है। और अगर ये केमिकल जो भी हम खा रहे हैं अगर वो टॉक्सिक होगा तो हमारे बॉडी में टॉक्सिक सिम्टम्स दिखाएगा। इन सारे टर्मिनोलॉजी को हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। तो इसकी टॉक्सिसिटी स्टडी करते हैं। सो टॉक्सिसिटी स्टडी करने के लिए एक लिपिंस्की करके 1995 में उन्होंने कुछ केमिकल्स की स्टडी करी और देखा कि अगर कुछ केमिकल में ये प्रॉपर्टी है तो उसको हम टॉक्सिक कह सकते हैं। जैसे आप खाना खाते हैं, कोई चीज खट्टी लगती है या बहुत बिटर टेस्ट की होती है तो आप समझ जाते हैं कि इसको हमको खाना नहीं होता अगर फर्स्ट टाइम आप खा रहे हैं, बिकॉज ये एक इंडिकेशन है कि इट्स बैड। उसी तरह कोई मॉलिक्यूल ड्रग होगा या नहीं होगा उसके लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज है। वो अगर प्रॉपर्टीज को फुलफिल करते हैं तो उनको ड्रग लाइक प्रॉपर्टीज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगे। इसको लिपिंस्की ने बताया था, इसलिए लिपिंस्की रूल ऑफ 5 कहते हैं, क्योंकि इसमें 5 पॉइंट उन्होंने रूल बताया था। ये 5 पॉइंट्स क्या क्या है? फर्स्ट है मॉलिक्यूलर मास। जो भी हम ड्रग जिसको हम डेवलप करना चाह रहे हैं उसके मॉलिक्यूलर मास 500 डाल्टन से बिलो होना चाहिए। अगर ये बिलो है तो अच्छी बात है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि इसमें 2 से ज्यादा इसमें 5 से ज्यादा हाइड्रोजन डोनर नहीं हो सकता है। आपको पता है कि केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो सकता है। अगर एक्सेप्टर और डोनर से, तो कोई भी मॉलिक्यूल जिसको हमने ड्रग की तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उसमें 5 से ज्यादा हाइड्रोजन डोनर्स नहीं होना चाहिए। और एक्सेप्टर भी उसका रूल है कि 10 से ज्यादा हाइड्रोजन एक्सेप्टर नहीं होना चाहिए उस मॉलिक्यूल में। और जो फोर्थ है वो कि उसकी परमेबिलिटी है। अगर उसकी परमेबिलिटी इसको log P से स्केल करते, log P से मापते हैं और वो 5 से नहीं होता, 5 से एक्सेस नहीं होना चाहिए। और जो 5th रूल है वो इन बातों का है कि इन जो 4 है आउट ऑफ 4 एटलीस्ट 2 कंडीशंस को फुलफिल करे। अगर कोई केमिकल है पोटेंशियल केमिकल जो इन 4 में से 2 कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं तो उनको हम ड्रग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी चीज के लिए क्या होगा? फिर हमारे पास उसके मॉडिफिकेशन के लिए टेक्निक्स हैं। वी कैन ऐड एनी ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। हम उसमें अमाइन ग्रुप ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, सो दैट हम उसके जो डोनर्स है उसके नंबर्स को कम या ज्यादा कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। सो ये लिपिंस्की's रूल ऑफ 5 है। अब इसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट्स बाय एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल है आपका, मैं एक डिजीज का नाम बताता हूँ, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये मेजर कॉज है ह्यूमंस में इनफर्टिलिटी का।
ये फीमेल्स में होता है इन रिप्रोडक्टिव एज में, जिसमें कि उनकी जो नॉर्मल ओवरी होती है उसमें एवरी मंथ वन ओवम इज रिलीज्ड, और इस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है. सो एवरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में उनके एक oocyte रिलीज होता है. बट पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम में क्या होता है, बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द बॉडी कुछ ओवर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन होता है, और उस पर्सन की जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, मतलब जीन में कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इंटरफेरेंस होते हैं, तो उनकी बॉडी में कुछ सिस्ट बन जाते हैं. और ये जो सिस्ट का नंबर होता है ये 2 से लेके 9 सिस्ट जो ओवरी में बन सकता है. सिस्ट का मतलब होता है गांठ, छोटी छोटी बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स. और ये सिस्ट क्या करते हैं, ये ओवुलेशन नहीं होने देते. जब ओवुलेशन नहीं होने देते तो क्या होता है, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है उस टाइम पे फीमेल्स को बहुत ही ज्यादा एब्डोमिनल पेन होता है. और आपने देखा होगा कुछ फीमेल्स में उनके फेशियल हेयर्स भी होते हैं, पिंपल्स भी बहुत होते हैं, एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. तो इसमें इसी की वजह से इनफर्टिलिटी होती है. अगर हम इसकी एक पाथवे देखेंगे कि पाथवे में होता क्या है, तो ये आप थोड़ा सा इसमें ध्यान देखेंगे. आई वुड लाइक टू हैव योर अटेंशन. इस पाथवे में, इस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में 2 चीज होती है. इसमें जो हमारे ओवरी है, ओवरी के जो सिंथेसिस है हार्मोन के, तो जो मेजर हार्मोन है वो है LSH आपका होता है, LH हार्मोन होता है, FSH हार्मोन होता है, और इन सब मेंटेन करते हैं हमारे नॉर्मल फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स को. लेकिन वो हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन होने की वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, मेंस्ट्रुअल इरेक्शन होता है, एनोवुलेशन होता है, ओवुलेशन नहीं होता है. तो अभी तक जो ड्रग है, अभी जो इसको इस्तेमाल करते हैं वो है उसका मेटफॉर्मिन और साइप्रोटेरोन एसीटेट है, और एक स्पेरेनोलैक्टोन है. ये 3 ड्रग है जिसको इस्तेमाल करके इन मेटाबॉलिक पाथवे को ब्लॉक करते हैं, और ब्लॉक करने के बाद ये सिम्टम से रिलीव होता है. लेकिन इस ड्रग की कुछ साइड इफेक्ट्स भी है. साइड इफेक्ट क्या है कि जो मेटफॉर्मिन इस्तेमाल करते हैं हमारे इसके लिए, डायबिटिक के लिए, सो ब्लड शुगर लो हो सकता है, कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है. सो हमने अपने लैब में एक स्टडी करी, ये हमारे पीएचडी स्टूडेंट है सूरज जोशी और हमारे ग्रुप ने किया. सो इसमें हमने एक प्लांट लिया, जैसे कि हमारे पास पहाड़ में एक प्लांट होता है ज़ैंथोज़ैलम एरमेटम. ये जो ज़ैंथोज़ैलम एरमेटम है इसको तिमूर के नाम से भी जानते हैं. तो हमने क्या किया, इन तिमूर के जो प्लांट्स के जो मॉलिक्यूल्स है उनको सिलेक्ट किया, और उसकी स्ट्रक्चर जो भी हमारे टारगेट्स हैं वो टारगेट्स के प्रोटीन को रिट्राइव किया. टारगेट्स प्रोटीन को रिट्राइव करके हमने देखा कि इन टारगेट्स में अगर उस केमिकल्स को भेज दें तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी. बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है स्टेबल कंडीशन. जैसे आप एक जग रखते हो टेबल के ऊपर, तो जग का पोजीशन वैसा अच्छा होगा जो गिरेगा नहीं, तो वो स्टेबल पोजीशन है. उसी तरह बाइंडिंग वैसी होगी, अगर बाइंडिंग एनर्जी कम से कम चाहिए तो वो स्टेबल पोजीशन में होगी. ऐसा करके हमने जितने भी वो तिमूर के मॉलिक्यूल्स थे उस सबका बाइंडिंग कराया इस रिसेप्टर के साथ. रिसेप्टर के साथ हमने एक फिगर है, इस फिगर को आप देख सकते हैं कि हमने 3 अलग अलग रिसेप्टर लिए. एक रिसेप्टर है इसमें CYP17 रिसेप्टर, दूसरा रिसेप्टर है 5 अल्फा रिडक्टेज रिसेप्टर, और तीसरा रिसेप्टर है ह्यूमन एंड्रोजन रिसेप्टर. ये 3 रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होता है हायर प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड सिंथेसिस के लिए. सो ये हमारे लिस्ट ऑफ केमिकल्स हैं जो कि तिमूर से हमने एक्सट्रैक्ट किए. एक्सट्रैक्ट हमने नहीं किए, दीज आर लिटरेचर में अवेलेबल है, जो पबकेम में ये अवेलेबल है. साथ ही साथ हमने इसको कंपेयर किया बाइंडिंग एनर्जी को 3 मेडिसिन जो करंटली इस्तेमाल होते हैं. तो ये जैसे मेटफॉर्मिन है, स्पेरेनोलैक्टोन है और साइप्रोटेरोन एसीटेट है. तो बाइंडिंग एनर्जी के बारे में थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूं. जब 2 मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करते हैं तो एक दूसरे के साथ बाइंड होने के लिए कुछ एनर्जी या तो चाहिए हो, बाहर से चाहिए या रिलीज कर रहे होते हैं. सो बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड. अगर ड्रग के सेंस में बात करें तो कोई भी मॉलिक्यूल जिसका बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर इज लेस देन -7.5 किलो पर मोल, तो वो बाइंडिंग अच्छी मानी जाती है. तो हमारे पास जो मेटफॉर्मिन है उसका जो बाइंडिंग एनर्जी है वो -5.1 किलो कैल है. इसके लिए CY
GP17 रिसेप्टर के लिए, सिमिलरली अल्फा रिडक्टेज के लिए भी 5.1 है, और स्पेरोनोलेक्टिन के लिए भी 8.6 है, 9.6 मैक्सिमम है इन 3 मेडिसिन में। हमने जो ये केमिकल इस्तेमाल की इसमें देखा है कि एसेरेनिन है जिसका बाइंडिंग एनर्जी 10.9 है, दूसरा ल्यूपियोल है, इसका जो बाइंडिंग एनर्जी है उसका -10.2 है, और तीसरा है कीमोफेरॉल, इसका बाइंडिंग एनर्जी 9.3 है। इसका मतलब जो करंट मेडिसिन है इससे लेस बाइंडिंग एनर्जी है, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, इसका मतलब अच्छे से बाइंड करेगा, और इस जो तिमूर है इसके कोई साइड इफेक्ट्स अब तक नोन नहीं है। सो इसकी टॉक्सिसिटी स्टडी में हमने करी, लिपिंस्की's रूल। तो ये मैं एक मॉलिक्यूल आपको दिखाना चाह रहा हूं जिसमें कि एक मॉलिक्यूल कोई भी एक ले सकते हैं और उसके 5 चीज देखते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि जो डोनर उसके 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सेप्टर उसका 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स, उसका मॉलिक्यूलर वेट 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उसकी परमेबिलिटी log p 5 से मोर होनी चाहिए। इस तरह से हमने अपने मॉलिक्यूल्स के भी स्टडी करी और पाया कि ये लेस टॉक्सिक है। सो कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन में व्हाट वी डू इज दैट हमने कोई एक मॉलिक्यूल का टारगेट फिक्स किया, डिजीज आइडेंटिफाई किया, उसके जो रिसेप्टर है उसको हमने डेटाबेस से निकाला और सॉफ्टवेयर के थ्रू उसका सिमुलेशन करके स्ट्रक्चर रिट्राइव किया, और जो हमारे लाइगेंड है, जो पोटेंशियल ड्रग मॉलिक्यूल है, उसको हमने उसके साथ अटैच किया और बाइंडिंग एनर्जी देखी और देखा कि वो लिपिंस्की's रूल को फॉलो करते कि नहीं करते। सो आई होप आई मेक यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। ये हमारे टीम मेंबर्स हैं जो हम लैब में काम करते हैं। हमारे विनीता शर्मा है, सुमन भंडारी है, शैलू गढ़कोटी है, और ये हमारे साथ ये सूरज है, और ये हमारा छोटा सा लैब है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। कोई क्वेश्चन होता है, आई विल वेरी हैप्पी टू टेक इट। I don't think there are much questions because sir ये एकदम इतना नया एक टॉपिक इन बच्चों के लिए, हमारे लिए भी है कि अभी एकदम से क्वेश्चन रेज करना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है। हम इस टॉपिक के बारे में आपसे और भी जानना चाहेंगे और कोशिश करेंगे आपके फर्दर लेक्चर इस टॉपिक के ऊपर और हों। So thank you sir for sharing your valuable information on such an important and upfront area of research. On behalf of my department, on behalf of my college, and on my own personal behalf, I thank Dr. Mandal for sparing his valuable time with us. And tomorrow the lecture will start at 10:30 a.m. and the guest speaker tomorrow will be Dr. Vivek Kumar Kedia. And once again I thank Dr. Mandal. Thank you sir. और सर हमारी पुरानी स्टूडेंट विनीता दिखाई दे रही थी फोटोग्राफ में, तो उसको मेरी तरफ से जरूर याद कीजिए। शी इज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट and I would like to wish her all the best for her career. So थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर योर विशेस। let's call it a day. वो उसका पीएचडी कंप्लीट होने वाला है और प्रोबेबली इसी साल सबमिशन हो जाएगा उसका। Okay. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द Thank you very much sir. Thank you. सभी स्टूडेंट्स आज की तरह ही कल भी लेक्चर अटेंड करेंगे, और कल हम थोड़ा सा लेट लेक्चर शुरू करेंगे। कोशिश करेंगे 10:30 के आसपास इस लेक्चर को शुरू करने की, ताकि हम लोग जहाँ भी ठीक से सेटल हो पाए। आज कई बच्चे भी, कई टीचर भी रास्ते में थे और वो ठीक से अटेंड नहीं कर पाए, तो इसको हम लोग आधा घंटा पोस्टपोन करेंगे आगे। और एक बहुत अच्छा टॉपिक था ये आज का जो डॉक्टर साहब ने डिलीवर किया। और कल का हमारे जो गेस्ट लेक्चरर हैं, वो गेस्ट स्पीकर हैं, वो डॉक्टर विवेक कुमार केडिया। अगेन उनसे पिथौरागढ़ में ही मुलाकात हुई थी, और वो बहुत एक नाइट्रोजन फिक्सेशन के ऊपर अपना लेक्चर देंगे। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन इन टाइम। आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर निरुपमा डालाकोटी फॉर हर excellent reporter work and Dr. Jayakant Pal for her support. Thank you. Welcome. Thank you, sir.